फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 के सम नंबर 1 to 17 सॉल्व कर चुके थे और रिमेनिंग 3 सम 18, 19, 20 सॉल्व करते हैं। उसके बाद थियरी देखेंगे, बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो पहले सम नंबर 18, 19 और 20 सॉल्व करते हैं। Sum number 18. PAB is the midpoint of a line segment between axes. Show that equation of line is x upon a plus y upon b equals to 2. So PAB is midpoint of the line segment between axes. So उसका डायग्राम ड्रॉ करने जाते हैं तो सपोज ये लाइन सेगमेंट AB है, PAB is mid sorry PAB is midpoint of line segment AB. So equation of line AB का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। क्लियर? इसका इक्वेशन फाइंड करना है लाइन AB का। तो लेट द x and y intercept of the line segment AB is A and B respectively. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है हमें? Let the x and y intercept. Let the x and y intercept of the line segment ऐसा लिखो। अदरवाइज डायरेक्टली line segment AB is A and B respectively. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? तो नहीं। क्यों? ऑलरेडी पॉइंट में x कोऑर्डिनेट A और y कोऑर्डिनेट B दिया है, तो आप x इंटरसेप्ट A एंड B सपोज नहीं कर सकते हो। तो हम इधर x एंड y ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। So coordinate of point A is x0 and coordinate of point B is 0, y. Now PAB is midpoint of line segment AB. P is midpoint of line segment AB. So coordinate of P equals to coordinate of midpoint of line segment AB means x plus 0 by 2 and 0 plus y by 2. Therefore A equals to x by 2, B equals to y by 2. So x equals to 2A and y equals to 2B. So coordinate of point A is 2A 0 and coordinate of point B is 0 2B. Now equation of line AB. Equation of line AB is x minus x1 divided by x2 minus x1 y minus y1 divided y2 minus y1 होगा इतना। सो ये 2b सामने जाएगा। अदरवाइज x minus 2a upon minus 2a y upon 2b इसको स्प्लिट कर देते हैं तो minus x upon 2a minus upon minus plus 2a upon 2a 1 y upon 2b. So x upon 2a plus y upon 2b equals to 1. 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x upon a plus y upon b equals to 2, जो हमें आंसर लाना था इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर? सो क्या किया हमने? ये सम में x एंड y इंटरसेप्ट एज्यूम कर लिया, फिर P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, इसका यूज करके x एंड y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, मींस x एंड y की वैल्यू फाइंड कर दी। सो कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B मिल जाएंगे, फिर बाद में तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट A एंड B
फाइंड कर दिया। क्लियर? तो ये सम नंबर 18 हुआ। Now, sum number 19. Point RHK divides point RHK divides a line segment between the axes in the ratio 1:2. Find the equation of line. So similar to previous sum में मिड पॉइंट दिया था, इधर डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:2 दिया है। सो डायग्राम तो सिमिलर जैसा ही होगा। x एक्सिस y एक्सिस, सपोज ये लाइन सेगमेंट ए बी है, पॉइंट r डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:2 is given. Clear? So इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फाइंड करना है। सो प्रीवियस सम में जैसा फर्स्ट पॉइंट लिखा था, सिमिलरली इधर फर्स्ट पॉइंट होगा, लेट द x and y intercept of the line segment AB, otherwise line AB is x and y आप एज्यूम कर सकते हो। अब इधर a एंड b नहीं है तो a और b भी एज्यूम कर सकते हो। तो हम a और b एज्यूम करेंगे तो x इंटरसेप्ट a 0 होगा और y इंटरसेप्ट 0 b होगा। सो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, लेट द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन is a and b respectively. So coordinate of a is a0 and coordinate of b is 0b. फिर बाद में आपको लिखना है r divides RHK divides line segment AB in the ratio 1:2. Clear? RHK divides line segment AB in the ratio 1:2. So coordinate of R equals to m1 x2 a x1 y1 x2 y2 तो x2 0 n2 x1 a upon 1 plus 2 m plus n means 1 into b plus 2 into 0 upon 1 plus 2. So h equals to 2a by 3, y equals to b by 3. Therefore a equals to 3h by 2 and b equals to 3y होगा, sorry k इधर होगा 3k. So coordinate of a is 3h by 2 0 होगा कि नहीं, and coordinate of b is 0 3k. Now equation of line AB फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन AB. ओके, so equation of line AB is x minus x1 divided by x2 minus x1, y minus y1 divides by y2 minus y1. होगा इतना कि नहीं? ओके, अब क्या करेंगे? तो पहले इधर 2 एलसीएम लेके कट कर देते हैं। तो 2x minus 3h divided by minus 3h y upon 3k. Now cross multiplication, 6kx minus 9kh minus 3hy होगा। So 6
6kx plus 3hy equals to 9kh। अब 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम, कौन से टर्म से? 3 से, तो क्या होगा? 2kx plus hy equals to 3kh। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्लियर? सो लाइन AB का इक्वेशन क्या मिला? 2kx plus hy equals to 3kx। And now last sum of this exercise number 20. By using the concept of equation of lines, prove that the 3 points 3, 0, -2, -2 and 8, 2 are collinear. So 3 points are collinear हमें प्रूव करना है। collinear प्रूव करने के लिए हम दो मेथड जानते हैं। फर्स्ट मेथड क्या? तो यूजिंग पाइथागोरस ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल्स टू ac स्क्वायर, ऐसा शो करेंगे तो भी वो कोलिनियर होगा? नहीं, वो तो राइट एंगल ट्रायंगल के हो गए। बट ab प्लस bc इक्वल्स टू ac जैसा कुछ होता है तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। मीन्स 2 डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस जितना होता है तो कोलिनियर हो गए। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। इधर तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लाइन। सो लाइन से कैसे 3 पॉइंट प्रूव करेंगे, कोलिनियर प्रूव करेंगे? तो सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन लाइन AB, लाइन BC एंड लाइन AC आर सेम, सो स्लोप ऑफ देम इज सेम होगा। क्लियर? सो तीनों लाइन AB और लाइन BC और लाइन AC का स्लोप सेम होगा, तो कोई भी दो लाइन का स्लोप फाइंड करो और सेम बता दो तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर हो गए। सो स्लोप ऑफ लाइन AB पहले फाइंड करेंगे। दैट इज क्या होगा? 2 plus 2, sorry 0 plus 2, 3 plus 2, in short 2 by 5। स्लोप ऑफ लाइन BC फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 2 plus 2, 8 plus 2, 4 by 10, in short 2 by 5। so slope of line AB equals to slope of line BC, therefore point ABC are collinear। क्लियर? सो ये एक्सरसाइज हमारी 10.2 इधर ओवर हो चुकी है। ओके, अब वंस अगेन थोड़ी थियरी देखेंगे, फिर एक्सरसाइज 10.3 देखेंगे। ओके, फ्रेंड ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें ज्यादा मेहनत करना। क्लियर? हम ऐसा बोले कि हमारी टेक्स्ट में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर 3 ट्रिगो होगा, फिर चैप्टर नंबर 10 होगा ये। क्लियर? स्ट्रेट लाइन 11 इजी है, 12 इजी है, 13 थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है लिमिट एंड डिफरेंशिएशन में। क्लियर? और बीच में एक चैप्टर 7 था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें लॉजिकल चैप्टर था, तो सबको लॉजिक इतना जल्दी इजीली अंडरस्टैंड नहीं होता है, तो वो भी एक चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो हमारी टेक्स्ट में ओनली चैप्टर नंबर 3, 7,
10 एंड 13 ये 4 चैप्टर ही डिफिकल्ट है, बाकी सब चैप्टर इजी है। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर ये है। क्यों सबसे डिफिकल्ट है? क्या बहुत सारी थियरी है, स्लोप फाइंड करने की मेथड, वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन, फिर अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? सो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर हमारे टेक्स्ट में ये है, ट्रिको से भी डिफिकल्ट है। क्लियर? तो इसमें ज्यादा मेहनत करना फ्रेंड, क्योंकि आपको सम फॉर्म लर्न करने हैं और कौन से सम में कौन सा फॉर्म यूज करना है एप्रोप्रिएट, वो देखना है। क्लियर? सो नेक्स्ट थियरी देखते हैं अब। तो वंस अगेन हम रिकॉल करते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ लाइन हमने ऐसा देखा था ax plus by plus c equals to 0। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? ax plus by plus c equals to 0। बाद में हमने देखा था कि इसका स्लोप कितना होता है, तो स्लोप m इक्वल्स टू हमने -a/b लिखा था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर बाद में x इंटरसेप्ट देखा था इसका, सो x इंटरसेप्ट की फॉर्मूला थी -c/a, इन शॉर्ट माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। देन आफ्टर y इंटरसेप्ट देखा था -c/b, इट मींस माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y देखा था। क्लियर? सो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या होगा? ax plus by plus c equals to 0, उसका स्लोप -a/b, x इंटरसेप्ट -c/a एंड y इंटरसेप्ट -c/b होगा। क्लियर? अब हम नॉर्मल फॉर्म भी देख चुके हैं। इक्वेशन का क्या था? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा equals to p था, where p is perpendicular distance from the origin था, and ओमेगा नॉर्मल का पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंगल था। क्लियर? अब हम ऐसा फॉर्म देखने जा रहे हैं कि हमें p और ओमेगा फाइंड करना है। नॉर्मल का इंक्लिनेशन एंगल मींस पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंगल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस p फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? सपोज कोई लाइन देती है 3x - 4y + 10 = 0, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम ओरिजिन, एंड इंक्लिनेशन एंगल मींस ओमेगा क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम थियरी देख रहे हैं अभी। ओके, लाइन दे दिया है तो ओमेगा और p क्या होगा, उसके लिए हम ये थियरी देख रहे हैं। सो फ्रेंड, इसमें 2 केसेस हो गए, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ c, if either c is positive or c is negative. So first case 1, if c is greater than 0, then c पॉजिटिव होता है, तो p और ओमेगा क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। उसके फॉर्मूला लिखनी है p और ओमेगा फाइंड करने की। सो फ्रेंड्स, c पॉजिटिव है तो c को इधर ही रखो, तो रिमेनिंग टू टर्म को राइट साइड ले जाते हैं, तो -ax - by = c होगा। नाउ √a² + b² से डिवाइड करते हैं ईच टर्म को, सो -a/√a² + b² * x -b/√a² + b² * y c/√a² + b²। Now compare with x cos omega plus y sin omega equals to p। So p क्या होगा? c/√a² plus b²। So ये लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? c/√a² plus b²।
where a equals to coefficient of x, b equals to coefficient of y and c is constant term. Then after इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो x का कोएफिशिएंट ये होगा, इधर x का कोएफिशिएंट cos ओमेगा, so value of cos omega is minus a upon root a square plus b square and value of sin omega is minus b upon square root of a square plus b square होगा। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों मिल जाएंगे तो हम क्या ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? कैसे? सपोज ट्रिगो में cos अल्फा -1/2 sin अल्फा √3/2 तो हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। ट्रिगो में ऐसा पढ़ के आए हैं। तो ये दोनों में से हमें ओमेगा मिलेगा और ये इधर से ये फॉर्मूला से b मिलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर? सो c पॉजिटिव होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। एंड सेकंड केस, इफ c इज नेगेटिव, if c less than 0 then c को राइट साइड ले जाना है, मींस राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो c नेगेटिव है और आगे नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इधर c पॉजिटिव ही था तो राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव टर्म रखनी है। इधर भी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना है तो a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू x, b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू y माइनस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो p हमें मिलेगा माइनस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos ओमेगा मिलेगा पॉजिटिव होगा a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड sin ओमेगा अगेन पॉजिटिव होगा, सो b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो स्ट्रेट लाइन में ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 फॉर्म में c नेगेटिव होता है तो cos एंड sin बोथ आर पॉजिटिव होगा, c नेगेटिव होता है तो cos एंड sin बोथ आर नेगेटिव होंगे। सो ये दोनों केसेस में p कंबाइन करना है तो इधर p नेगेटिव था, इधर p पॉजिटिव था, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं p इक्वल्स टू मॉड c डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड रिमूव करते हैं तो प्लस और माइनस c होगा। सो ये दोनों फार्मूला इसमें आ जाएंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन ax plus by plus c equals to 0 is mod c divided by square root of a square plus b square होगा। क्लियर? तो ये b हमें क्या मिला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम द ओरिजिन, किस लाइन का? ax plus by plus c equals to 0 का। क्लियर? फिर अब एनी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड किया, अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 from a line ax plus by plus c equals to 0 is distance of a point x1 y1 from a line ax plus by plus c equals to 0 is, तो डिस्टेंस को हम p से डिनोट करेंगे। अब ये इसका पूरा मॉड्यूलस लेना है, इक्वल्स टू 0 इंक्लूड नहीं करना है तो मॉड्यूलस में इतना होगा, बट x की जगह x कोऑर्डिनेट और y की जगह y कोऑर्डिनेट रिप्लेस करना है पॉइंट का। तो मॉड्यूलस में पूरी लाइन होगी, बट x एंड y की जगह क्या रिप्लेस करना है? तो जिस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना हो वो रिप्लेस करना है।
मीन्स x की जगह x1 और y की जगह y1, तो क्या होगी फॉर्मूला ax1 plus by1 plus c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square। क्लियर? सपोज ये ओरिजिन होता तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो इधर रिप्लेस करो तो मॉड c अपन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ओरिजिन से डिस्टेंस तो हम देख चुके थे, क्या था? मॉड c अपन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गई। जो पहले हमने फॉर्मूला डिराइव की p इक्वल्स टू मॉड c अपन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो ओनली ओरिजिन के लिए। अब ये फॉर्मूला डिराइव किया है वो जनरल है एनी पॉइंट के लिए। क्लियर? सो लर्न करके रखना फ्रेंड, ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है तो मॉड c डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड एनी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला हमारी होगी। ओके, नाउ इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन perpendicular distance between two lines, it means the perpendicular distance between two parallel lines, perpendicular distance between two parallel lines ax plus by plus c equals to 0, and second one ax plus by plus c dash equals to 0 is, means टू लाइन पैरेलल है, ऐसा कब बोल सकते हैं? तो दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। इसका स्लोप माइनस a अपन b, इसका स्लोप भी माइनस a अपन b, स्लोप आर सेम, सो टू लाइंस आर पैरेलल। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइन इज mod c minus c dash divided by square root of a square plus b square। सो ऑल थ्री डिस्टेंस वाली फॉर्मूला में डिनोमिनेटर सेम रहता है, चेंज ओनली न्यूमरेटर होता है। क्लियर? टू लाइन पैरेलल है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या कौन से फॉर्मूला होगी? c minus c dash अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करने के पहले ये दोनों में x एंड y के कोऑर्डिनेट सेम करने होंगे, कोऑर्डिनेट नहीं, कोएफिशिएंट सेम करने होंगे। सपोज इलस्ट्रेशन लेते हैं 3x minus 4y plus 10 equals to 0, 6x minus 8y plus 5 equals to 0, otherwise 25 लिख देते हैं। अब ये दोनों लाइन का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो पहले इसका स्लोप क्या होगा? a3 b minus 4, सो स्लोप माइनस a अपन b इन शॉर्ट 3 अपन 4 होगा। इसका स्लोप -6 अपन -8, सो 3 अपन 4, सो स्लोप आर सेम, सो टू लाइंस आर पैरेलल। अब ये दो लाइन पैरेलल है तो उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। बट फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले दोनों लाइन में x एंड y के कोएफिशिएंट सेम करने होंगे, मींस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, अदरवाइज इसको 2 से डिवाइड करना होगा। कोई भी एक प्रोसीजर करनी है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 6x minus 8y plus 20, 6x minus 8y plus 25। Now we have decided c and c dash, तो ये c तो ये c dash, अदरवाइज ये c तो ये c dash होगा। It means c 20 and c dash is 25, a is 6 and b is -8, so perpendicular distance is mod c minus c dash upon square root of a square plus square root of b square। It means 5 upon root 100 means 10, so 1/2। so perpendicular distance between these two parallel lines
इज 1/2 होगा। क्लियर? सो फ्रेंड एक्सरसाइज 10.3 के लिए ये होगा मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा mod c अपन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1 क्या होगा mod ax1 plus by1 plus c अपन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन क्या होगा mod c minus c dash अपन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना होगा बोथ लाइन में x एंड y का कोएफिशिएंट सेम करना होगा। सो फ्रेंड अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। ये थियरी लर्न करके रखना।